Please let me confirm. I have shared a screen. It is visible or not? Anyone please confirm once. I'm showing syllabus. It is visible or not? Yes, sir. Okay. Oh, yes, sir. दिख रहा है। Okay. As you can see here, we have a completed mensuration, and the mensuration part is a content in syllabus. As you can see, I have a highlighted here surface area and volume of white cube on an sphere. Apart from this, there is nothing from mensuration. Right now, I'm just going to start. Today's topic is coordinate geometry, and coordinate geometry is a very easy topic, and it is a more like than calculation. Just you have to get some idea how to apply that type of question and which formula we should have to use. After that, it is just a calculation, nothing else. And if you remember squares and table, that will help you very much, especially in this topic, right? So my strategy will be in upcoming days. I will take almost 7 to 10 lectures in which I will try to complete your entire syllabus of mathematics. Then after completing the all, in which I will provide an overview of all topics, all concept, and some test questions also. After that, after completing the all topic of mathematics, then I will try to give some questions, and we'll take from your books also. As you know, mathematics is all about practice. So we will try to practice a lot of questions also from the previous year's questions, and from the concept of book. And there is a question from me also, right? And Yes. let me tell you what will be my plan for the upcoming uh, days. So I will try to, as you know, I have a completed Kabir Ansari. Kabir Ansari, please be on time, as I have mentioned, right? So I will try to complete your syllabus like that. First of all, I have completed your mensuration. Mensuration. भाई दिख नहीं रहा है। Please leave this class and join me. Maybe there is some network issue from your side. Right. Okay. Please let me confirm all of you. It is visible or not? My screen is visible or not? All of you. What's up? I'm saying that my screen is visible or not. I'm explaining syllabus, writing some topic name. It is visible or not? Please once confirm. Yes, visible, sir. Visible. Okay, got it. So I have completed mensuration chapter. It is done. Now I'm going to start coordinate geometry. Today topic is coordinate geometry. And third one, I will try to cover. So this is your mensuration part, and today I will discuss about this topic, in which we will study distance formula, section formula, and so many things. Right. Then after I will try to complete your all geometrical questions, geometry. In geometry, you can see here some parts of theorem and related to your triangles and circles also. So we will complete this. Okay. Now then we will start chapter number 4. That will your AP. So we'll. It is also very important and also very easy topic. So उसको देख रहे हैं, right. Then after we will try to complete Trigo, very easy subject and topic. Then after I will try to complete coordinate equations and linear equation in two variables in one class, right. I will try to cover these two topics in class. Then after I will
start your statistics. And it is not a part of syllabus, but I will give you some idea. If there are question, so you will be able to solve that also. Right. Rehan Ansari, I think you are looking for questions. If you are interested, please ask. Should I start? Today's topic is coordinate geometry. ओके, तो आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई नो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th, so we will not going to like very rocket science. You already know the basic concept, so I will explain all the things, right? ऑब्जेक्टिव में ये सब जानने की जरूरत नहीं है, so फालतू चीजें मैं बताऊंगा नहीं, ये सब बस लिखा है अच्छा दिखाने के लिए। बाकी इतना हिस्ट्री वगैरह नहीं जानना आपको। बाकी मैं बता दूं कि रेने देकार्ते जो है इसका फादर कहलाते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि फादर जो है रेने देकार्ते, बस याद रखना है। एंड सम बेसिक पॉइंट्स जो है आपको माइंड में रखनी है ड्यूरिंग योर सॉल्विंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस। पहला, to locate the position of a point on a plane we require pair of coordinates axes. राइट, एक्सिस क्या होती है आपने पढ़ा होगा नर्सरी से, मतलब बहुत पहले से, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब आपके जो एक्स एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसमें जो पॉइंट होती है जिसे आप कुछ भी लिखते हो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं एक्स। सबसे पहले एक्स लिखा आता है, उसके बाद वाई। ठीक है, इस ब्रैकेट में जो लिखाना है इसको लिखने का तरीका है और उसको पढ़ने का भी तरीका है। पहले हम लोग जो भी लिखते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखते हैं, देन आफ्टर वाई एक्सिस का लिखते हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों पॉइंट का एक स्पेशल नाम है। एक्स को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं एब्सिसा ओरिजिन, ऑर्डिनेट। हिंदी वालों के लिए बता दूं, हिंदी वालों को बोलते हैं इसको कुछ, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ आपके प्रीवियस ईयर में, तुम इसी से तुम एग्जैक्ट दिखा दूं, मैं भी हो, अदरवाइज क्वेश्चन जो इसमें नहीं है, इसमें चलो इतना बिजी नहीं। तो इस तरह से आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इसमें 2 और -4 है, इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट है, तो आपके आंसर फोर्थ कोऑर्डिनेट, नो फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं, मतलब -4 कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखो, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बताया कोऑर्डिनेट के बारे में कि देखो ये कोऑर्डिनेट्स होता है ना, ऐसे होता है, एक बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या है ना, ये क्वाड्रेंट के बारे में। अभी वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं कि ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, तो इस एक्स वाले को क्या बोलेंगे, इस वाई वाले को क्या बोलेंगे, तो मैंने बताया इसको बोलते हैं एब्सिसा, या इसको बोलते हैं हिंदी में भुज। और अगर मैंने पूछूं कि ये -4 की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, इसको क्या नाम है, नाम क्या है, तो ऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनेट। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट मतलब कि आप जानते होंगे, ये जो मैंने अभी अब लिखा है एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से जो क्रॉस करके बनता है, इसमें 4 देखोगे आप तो इस तरह से 4 पार्ट बनते हैं। इन 4 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, इस तरह से 2 -4 हो गया, आपके 5 -10 हो गया, या आपके -5 -10 हो गया, इस तरह से पॉइंट दे रखे होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, एंड दैट इज की कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना आपके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस दे आर, चलो यहाँ पे समझाता हूँ, इससे अच्छा समझ में कहा जाए। देखो ये जो लाइन लिखा है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म एक्स एंड जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पर जो होगा वो एक्स तो होगा ही, जो भी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का वैल्यू तो होगा ही, लेकिन वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, आई थिंक ये सब इजी है। यस सर। ओके, देखो यहाँ से अच्छे समझ में आएगा, मैं आपको एकदम क्विक में रिवीजन करवाता हूँ।
ये आपके वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये आपका ई एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश बोलते हैं इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। अगर आप इन दोनों को इस तरह से ड्रॉ करते हो तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं और 2 एक्सिस कहलाते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट में होता है उसके जितने पॉइंट्स होते हैं उसके पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड में होते हैं इसके जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप आओगे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो होता है ना जीरो होता है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं और इधर जाते हैं तो प्लस में होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस में होता है, और आपके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये होगा माइनस में, और नीचे की साइड में आएंगे तो वाई होता है माइनस में। ये वैल्यू आपको याद रखना होता है और आप जानते भी हो, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर पूछा जाएगा आपको पॉइंट देकर कि कौन सी पॉइंट, जैसे कि आप मैं एग्जांपल दूं -4 और 5 का, तो ये किस पॉइंट में आएगा। तो सबसे पहले मैं बता, यार कौन है प्लीज म्यूट करो ना, ठीक है। आपको दिया रहेगा यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आपको बताना होगा ये किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में पहचानने का तरीका ये है, देखो मुझे मालूम कुछ लोग क्या रहा होगा, बहुत इजी है ये, बट जिनके लिए नहीं आता और जो नहीं बोल भी पा रहे मुझे समझ में आ रहा नहीं आता, उनके लिए बता देता हूँ। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि मैंने बताया आपको कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, हमेशा हमेशा होता है ये, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को मैं पहले देखूंगा कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस में है या प्लस में है। देखूंगा यहाँ पर ये माइनस में है, तो माइनस में आपको तलाश करूंगा मैं कहाँ जा सकता है। तो एक्स एक्सिस वाले इधर होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और इधर होते हैं नेगेटिव, तो मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आने के बाद मुझे x तो मिल गया, वो y की वैल्यू देखना होता है। तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, वो भी 5 है, तो मैं देखूंगा ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है y एक्सिस में, तो मैं यहाँ आऊंगा। तो इधर आने के बाद आपकी वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पे 3 है 4 है तो 5 आएगा, तो देखेंगे इसमें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इस तरह से हम पहचानते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। ये तो क्लियर होगा ना, प्लीज बताना, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना? नो सर। फॉर्मूला भी होता है ना सर? सॉरी, फॉर्मूला भी होता है सर, इसको प्लस प्लस माइनस प्लस। हाँ वो तो होता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, वो भी वो डिस्टेंस ये निकालने देखो, के लिए होता है। ये है ना, ये बोले हो आप ना। हाँ सर, ये भी। तो ये होता है यहाँ पर, जहाँ जहाँ अगर से पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपका फर्स्ट में, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड में, थर्ड में दोनों होता है नेगेटिव, फोर्थ में पहला पॉजिटिव होता है और सेकंड जो होता है नेगेटिव होता है। जी तो सर। दैट आपके फाइव इस, का वैल्यू दिखा रहा है प्लस माइनस में। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स और वाई का हमेशा याद रखना, शुरू वाले होते हैं एक्स, राइट। यस सर। असद नफीस, असद नफीस, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर आ रहा है। मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अशरफ, यस सर। ठीक है। रिहान खान, आई थिंक आपने पहली बार ज्वाइन किया क्या, या आपने कल ज्वाइन किया था? रिहान खान, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं बताना? यस सर। ओके, इसमें समझने वाली बात भी नहीं है कुछ। देखो मैंने जस्ट आपको 2-3 चीजें बताई है, इसी पे पहला क्वेश्चन आपको आ गया। देखो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि आपके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि विच पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर आपको याद है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले माइनस होता है फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, बट अगर क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन तो उसमें से एलिमिनेट करके आप बता दो। तो इसका क्या आंसर आएगा? बी। ऑप्शन ए सर, ए सर, बी नंबर। ऑप्शन बी। सी सर। बी बी बी। ए ऑप्शन है। बी बी सर। बी होगा बी। बी। देखो फोर्थ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है सर 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर का है, ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है पिछले साल 2024 में। ये पूछा गया है 98 नंबर क्वेश्चन में कि ये पॉइंट किस में आएंगे। तो मैंने आपको बताया जो भी होते हैं ना, इसमें आपको पहले देखना होता है इस तरह से क्वाड्रेंट जो आपने बताया था अभी, तो क्वाड्रेंट में देखना होता है किस में आएगा। तो मैंने बताया आपको ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये वाई वैल्यू होते हैं, वाई होते हैं ये। मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि जिनको शायद, और ये आपका इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो अगर आपको याद है वैल्यू कि इसमें चलो नेगेटिव है और पॉजिटिव, तो आप इसे एक बार में ही पकड़ लोगे और टिक कर दोगे। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जहाँ पर माइनस माइनस वैल्यूज का है, यहाँ माइनस वैल्यू है, यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस प्लस है, तो आप साइन देकर आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्या कि यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में ना, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और फिर प्लस करते हैं।
लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि पहली वैल्यू क्या होती है, x की होती है। एक्स की वैल्यू लेंगे। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी नहीं। ठीक है, ये अभी तो शुरू हुआ है, हमसे बहुत सारी फॉर्मूला तो पढ़नी है और बनानी है क्वेश्चन। तो यहाँ पर x जो है हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इधर राइट साइड में है और यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, प्लस कहाँ है, यहाँ है प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको कि अगर कोऑर्डिनेट जो है आपके बताया गया कि एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है, बताया गया एक्स एक्सिस में धीरे धीरे तो आएंगे, फिर यहाँ पर वाई में आएंगे, इस तरह से आपको पॉइंट आ जाते हैं। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि आपके इस तरह से पूछा जाता है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर का दिखाया भी, इसको फिर से मैं बताने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन मतलब इसका आपको हर जगह, अभी तो इसका आपने फार्मूला देखो, इससे आगे तो सोच है, और हम लोग जब यूपी डिस्टेंस निकालेंगे या कुछ एक्सटेंस निकालेंगे तो इससे काम होगा। डिस्टेंस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से किसी को याद ना होगा, हर किसी को याद होगा ये। याद ठीक है, यस आपने 10th याद है सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं इतना आप समझाने वाला हूँ नहीं, बस इसका दिखा देता हूँ। देखो, इसको पूरा एक प्रॉपर इसका डेरिवेशन भी होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। बस मुझे इससे मतलब है नहीं, मेरा जो रिजल्ट से मतलब है। तो मैं बताता हूँ सिंपल, थोड़ा सा जल्दी में। अगर 2 पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, मैंने बताया ये क्वाड्रेंट होता है ना, इसी अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसके दोनों को बी से डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको पी मान रहा हूँ, इसको क्यू मान रहा हूँ, और यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट से मैंने बताया कि ये x1 है और ये है y1, और यहाँ पर जो है इसकी पॉइंट x2 एंड y2। x2 y2। हाँ, देन आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालने का, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्मूला you have to use to get the distance between two points। इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं लोग, इसको नोट कर लेना है आपको। ओके, अब इसमें देख सकते हैं इसका एग्जांपल क्या है। अगर दो पॉइंट का वैल्यू दे रखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स उसके, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो इस तरह से होता है। और मैंने बताया जो यहाँ पर होता है x होता है, तो यहाँ पर 2 x है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट x1 एंड वी नेम्ड इट x2। ठीक है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, इस वजह से मैंने शुरू वाला को y1 कर दिया, इसको y2 कर दिया। अब इसका जो फॉर्मूला बताया x2 क्या है, ये है, तो मैंने 5 लिख दिया। x1 क्या है, ये 1, तो 1 लिख दिया। और इन दोनों को पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, राइट। ये कि आपने 25 इसको भी कर दियो और इसको भी आप करके स्क्वायर करो, ऐसा नहीं होता। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, राइट। आपने नर्सरी में पढ़ा होगा ये। तो यहाँ a पर माइनस बी का होल स्क्वायर पे। नहीं, ब्रैकेट नहीं वो यहाँ पर ज्यादा तो लंबा होगा, ब्रैकेट, a माइनस b का होल स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट बोर्ड में जाके उसका स्क्वायर यहाँ पर करो। मैंने बताया ना क्या कि हमेशा पहले, जैसे आपने बोर्ड मास पढ़ते हो ना, तो बोर्ड मास में क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट को आपको क्लोज करना होता है। ब्रैकेट जो होता है ना उसको सोल्व करो, ब्रैकेट में सोल्व करूंगी इसको 5 - 1 तो 4 आएगा। और इसको यहाँ पर मैंने क्या किया, y2 क्या है, y2 इज देयर 7, एंड माइनस होता है हमेशा, देखना यहाँ प्लस नहीं होता माइनस होता है, तो माइनस किया। और ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है y1 में, तो y1 का माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। इनको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, ये 4 आ जाएगा तो 116 आ जाएगा। इसको आप क्या करोगे, इसका आपको आता है कि नहीं करने के लिए सोल्व आगे फर्दर स्क्वायर निकालेंगे। यस टू कर सकते हो, अगर नहीं आता है इतना तो आप 5 कर लो, 8 कर लो, एलसीएम थोड़ा ले सा आप कर लो, 2 इंटू 9 कर लो। यहाँ पर डबल पेयर हो गया, 2 को बाहर कर लिया, 29 आ गया, दैट इज योर आंसर। सो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी दे रखा है एग्जैक्ट 2 पॉइंट, इसको निकालने का हमें भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मैं देख लेता हूँ एक बार, तो उसको भी साथ साथ करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है आपके कि एक पॉइंट दे रखा है और उसको एक्स एक्सिस पूछा जाए कितना आएगा। तो अगर आप देखो, मैं बताया आपको कि एक जो लाइन है ना, ये सॉरी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसी पहले एग्जांपल में क्रिएट करूंगा। अगर कहा जाए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो मैं एक एक्स एक्सिस को पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो बताओ इसकी जो वाई का एक्सिस है और एक्स एक्सिस क्या होगा, दोनों पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट हो, एक्स एक्सिस के पहले मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी है, पहले तो इसको फिर से कर सकता हूँ पहले बनाने के लिए, ठीक है। पहले इन द सेंस कि एकदम दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, उससे होनी चाहिए इस तरह से। तो मैं बताओ यहाँ पर जो पॉइंट होगी उसका क्या आएगा, मतलब
0, -2। 0, -2 या माइनस फिर x बोल सकते हैं, ये सॉरी y जी बोल सकते हैं। y। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम तो y बोलते हैं। तो मतलब ये करने का मतलब है जहां पर x एक्सिस से लाइन गुजरती है, सॉरी y एक्सिस से गुजरती है पैरेलल टू x, वहां पर x की वैल्यू तो क्या 0 होती है? रहेगा, x 0। 0। जी हाँ, तो बस ये याद है ना, इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन बनेगा। जी। यहाँ पर देखो एक पॉइंट क्या है, p है। सर डिस्टेंस पूछ रहा है ना एक्स एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का ही वैल्यू होगा। Obviously the distance of the point p is point p from the axis x is कहा गया कि एक p पॉइंट है जिसको x एक्सिस, मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है x एक्सिस से, मान लिया यहाँ पर q है पॉइंट, इस x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये यही पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, कंफर्म करना एक बार। यस सर। तो यहाँ पर आपको पॉइंट तो दे रखा है ऑलरेडी ना 4 और 5, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको अपने कॉमन सेंस यूज करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 5 ये आएगा कि नहीं? x, 0। यस सर। यस सर। अब इसको 4 क्या आएगा करना है? सर 4 किसका है ये? जिस एक्सिस से म्यूट कर लो। पैरेलल रहेगा उसका दूसरा एक्सिस 0 माना जाएगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लेना जिसका भी ओपन करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा फॉर्मूला को यूज करके। निकल जाएगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा आपको। हाँ भाई यस बन सर। जाएगा। यस सर। सर इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई का वैल्यू दे देना, Y का वाई वैल्यू एक्सिस दे देना। पूछेगा तो Yes, हाँ sir. Obviously. वाई पूछेगा तो एक्स का वैल्यू दे देना। ऑब्वियसली अगर आप वही जो प्रैक्टिस प्रोसीजर प्रैक्टिस करो तो आपको दिमाग में चलने लगता है। या आपने एहसास किया होगा, अगर क्वेश्चन मैथ में खासकर सोल्व करोगे तो उस पर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना दिमाग खुलेगा, उतना नंबर ऑफ मेथड आपके माइंड में आएंगे और कुछ जल्दी बनने लगता है वो क्वेश्चन। ये मैथ का प्रैक्टिस का ही खेल है। देखो मैं बताऊं, राइट नाउ आई एम नॉट लाइक टीचर, लाइक मैं टीचर नहीं हूँ, मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। या मैं आया था पहले पढ़ा रहा था, आपको कंपटीशन बताया है, मैं क्लास 10 के बाद से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ 3 साल जो मैंने पढ़ाई करी है डिप्लोमा का, उसके साथ साथ मैंने कंपटीशन पढ़ाया है 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, थ्रू आउट द 3 इयर्स, राइट। उसके बाद जब मेरा जॉब में हुआ तो अब राइट नाउ आई एम नॉट इन द टीचिंग फील्ड, राइट। बट मैं आपको जस्ट गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। तो जो चीजें माइंड में आती है मैं बताने लगता हूँ। कुछ चीजें हैं जो मिस्टेक से मतलब वो याद नहीं होता, फिर बाद में आता है कि ये बताना था, भूल गया मैं। तो वो क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। मैं 1 साल पर पढ़ा रहा हूँ, पिछले साल पढ़ाया, फिर अब 1 साल के बाद फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। दैट्स वाई कुछ टॉपिक जो है वो मुझे माइंड से निकल जाता है, फिर बाद में याद आता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, कि रहता हूँ, याद आता है ये बताना था मुझे। तो थोड़ा सा उसको लेकर के आप थोड़ा हेल्प कर सकते हो मुझे। कुछ टॉपिक मैं भूल रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ तो उसको मुझे करेक्ट कर सकते हो, राइट। यस सर। ओके सर। तो आप इस तरह से कर सकते हो। एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। ये वही है, मैंने बता दिया आपको डिस्टेंस का, चलो कुछ और बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत इजीली होता है डिस्टेंस फॉर्मूला पर, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जो सोल्व कर सकते हो, मैंने बता भी दिया। और एक होता है आपके जो ओरिजिन पॉइंट रेशियो होते वाला हैं। सर। हाँ, रेशियो वाला बताऊंगा, तो सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट है ना, वो बताऊंगा। अब देखो क्या होता है ना, कि आपकी ये मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें एक जो पॉइंट होता है सेंटर, इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से निकला है मूल पॉइंट। बिंदु। हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है मुख्य बिंदु, हाँ मुख्य बिंदु, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट जो है वो देते हैं 0 0, राइट। तो अगर यहाँ से कोई चीज है या यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है, लेट सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से मुझे इसके बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, तो इसकी आपको मालूम होनी चाहिए कितना है। मान लेते हैं x है, इसकी y है, और इसकी भी मान लेते हैं कितना 0 0 होगी, क्योंकि इसका तो ऑब्वियसली 0 पर है, ओरिजिन है, तो इस वजह से 0 0 होगा। अब इन दोनों के बीच के फॉर्मूला निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्टेंस वाली x2 - x1 वाला यूज करोगे, तो यहाँ से जो है 0 माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ x2, और यहाँ पे 0 माइनस होगा तो बच जाएगा y2। तो सिंपली जहां पर भी बताया जाए कोई डिस्टेंस दे रखा है आपको 0.4 और 5, और इससे पूछा गया है कि इन दोनों इसकी जो इस पॉइंट है इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी होगी, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस होगी, तो सिंपल क्या करना है, रूट अंडर करके दोनों का स्क्वायर कर देना और जोड़ देना है। 60 कितना आएगा? 25
60, 25, 41. ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो ओरिजिन वाला फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड फार्मूला। अगर आपके पास डायरेक्ट एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसका है, अगर आप कुछ प्रूव करने वाला आपको, तो ये खैर क्लास 10th में जो आपके सब्जेक्टिव में आते हैं 5 नंबर के, 6 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन, उसमें पूछे जाते हैं कि इसको आप प्रूव करके दिखाओ कि इन दोनों की डिस्टेंस है या इनका डायगोनल जो है इसके इक्वल है, तो कंडीशन अलग होता है। बट इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, दैट विल आई विल डिस्कस, राइट, किस तरह से आते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो पैरेललोग्राम जो होता है, यहाँ पर दे रखा है कि इन दोनों का जो साइड है इक्वल है, इन दोनों के साइड इक्वल है, फिर यहाँ पर डायगोनल का आपको कॉन्सेप्ट लगा करके पॉइंट निकालनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन कुछ एज अ एग्जांपल। रोम्बस होता है जो स्क्वायर से बनता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप। रेक्टेंगल का भी इसी तरह से सेम फार्मूला है, स्क्वायर का भी आप थोड़ा यूज कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स या इक्वी डिस्टेंस का भी एक फार्मूला आएगा, मैं बताऊंगा। ये आप खासकर जहां पर आप प्रूव करोगे वहां पर यूज होता है। कहा जाता है अगर 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट में से मैं 2 का डिस्टेंस निकाल लूं और वो डिस्टेंस जो है वो जो तीसरे के इक्वल हो जाए, हाँ, एक पूरे लेंथ का इक्वल हो जाए दोनों को ऐड करने के बाद, दैट विल कॉल कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट्स। इसको आप शो करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पार्ट पे आ चुके हैं, इसका नाम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस टॉपिक, और यही एक है थोड़ा समझने लायक, बाकी तो बच्चों का खेल है। सेक्शन फार्मूला में 2 होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ठीक है, इसको समझोगे आप और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो यू शुड लाइक फोकस हियर, राइट। Yes. इंटरनली जो अंदर से इसका जो डिवाइड होता है किसी भी रेशियो में, एंड जो बाहर से होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नली। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो इससे मतलब नहीं है। हम लोग सीधे आएंगे फार्मूला पर, जो है हमारा सेक्शन फार्मूला का मेन फार्मूला, डेट इज 30। ये उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको। देखो ये जो एक क्या है ना, यहाँ पर जो एक्सिस है, ये मैंने वाई एक्सिस पर दिया, कोई पॉइंट लिया ए और बी, और उस पॉइंट को किसी भी एक जगह पर कोई तीसरी पॉइंट जो है वो कट कर रही है, और वो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कुछ m और n रेशियो में या m1 या m2 रेशियो में कुछ इस तरह से कट कर रही है पॉइंट, जो एक दो भाग तीसरी पॉइंट है कि उससे m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो वहां पर x और y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक फार्मूला का यूज करना पड़ता है, डेट इज योर सेक्शन फार्मूला। और वहां पर हम x की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1। ये क्या है, दोनों m1 m2 क्या है, यहाँ पर दोनों ये रेशियो है, राइट। तो हम लोग नीचे जो होता है, जो डिनोमिनेटर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसको दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों रेशियो को, और दोनों रेशियो को x1 और x2 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट इज योर सेक्शन फार्मूला। ये इंटरनली के लिए है। यहाँ पर x का जैसे आपने निकाला है उससे सेम आपके y का फार्मूला होगा, और यहाँ पर ये पूरा क्या है ना, ये डेरिवेशन टाइप का है, तो आपको वो नहीं याद करना, आपको सिंपल ये याद करना है, ये वाला, और उतना भी नहीं है। तो मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन इन द सेंस कि आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे x y एंड इक्वल टू mx1 प्लस y प्लस m1 प्लस m2 प्लस, या आप इसको प्लस नहीं, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, क्योंकि डॉट हाँ, x का इससे रिलेशन है और y का इसके बाद का रिलेशन है। तो यहाँ पर m1 y2 प्लस y1 प्लस m1 प्लस m2। देखो दोनों में क्या हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में प्लस हो रहा है, जो रेशियो है हमारे, और ऊपर में मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, और इनको कंबाइन करके फॉर्मूला को इस तरह से लिख करके सर्किल कर लेना है, या उसको नोट कर लेना है। अब ये सेम इस तरह से आपके सेक्शन फार्मूला में क्या होता है ना, कोई जो m1 और m2 रेशियो था, वो मान लो 1 या 2 में कर रहा हो, या 3 और 5 में कर रहा हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि रेशियो है। बट अगर वो 1 और 1 रेशियो में करो, जो ऐसा पॉइंट हो ए और बी इक्वल, हाँ एकदम इक्वल कर रहा हो, इक्वल पार्टिसिपेट कर रहा हो इसमें, तो वहां पर 1:1 हो जाता है। उस कंडीशन में आप इस सेक्शन फार्मूला को यूज करोगे तो वो कुछ इस तरह से रिजल्ट में आएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये सिंपल x1 ही हो जाएगा, x2 से करोगे 1 से मल्टीप्लाई तो x2 हो जाएगा। भाई येलो शेडो नहीं दिख रहा है सही। अब मैं तो उसको चेंज कर नहीं सकता ना, जूम कर लो, जूम थोड़ा सा आप जूम कर लो, या देख मैं जूम कर रहा हूं।
अब दिख रहा है? यस हाँ भाई ठीक है। तुम आजू म्यूट कर रहना प्लीज, तुम्हारे बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही है, सो प्लीज म्यूट रखना और जो क्वेश्चन है बाद में पूछना, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट में आपको बस पॉइंट चाहिए ए और बी का, और उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना होता है। क्यों 2 कहाँ से आया बता सकता है कोई? ये 2 क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं? 2 से ही क्यों करना है, 3 से क्यों करना सर रेशियो काट के 1 आ जाता है। ऐड हो गया। है? रेशियो ऐड हो गया। चलो इतना तो आपको फोकस है एंड आप माइंड सेट करके देखो इसका, ठीक है? तो ये आपका ये था। और बाकी अब एक और फॉर्मूला आता है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके सारे कोऑर्डिनेट दे देंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने पिछले बार इसमें गलती कर दिया था क्योंकि यहाँ पर देखोगे ये जो है ये थोड़ा सा आपको अलग तरीके का नजर आएगा, डेट इज नॉट अ करेक्ट। सर इसका लेकिन इससे ट्रिक क्वेश्चन नहीं आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। नहीं आता, लेकिन इसका यूज कभी कभी आ जाता है, बट मैं बता देता हूँ, आप याद कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन भी कराऊंगा, राइट? तो इसको ट्रिक बता दूं मैं। देखो एरिया निकालने के लिए ना कोई भी चीज है लाइक ट्रायंगल है, इसके 3 पॉइंट होते हैं। मान लो ए है, बी है, सी है, तो इन तीनों का जो है ना कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। पहला x1 होगा, y1, देन x2 y2, देन x3 y3, ठीक है? अब इसका यूज करके आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ। इसको बोलते हैं हम लोग क्या मालूम है? तो पढ़ा है 11th में, इसको क्या मैग्नीट्यूड सिर्फ सर होता है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं तो बता सकता है? इसकी मैं जो अंदर 11th की में पढ़ा था। इसके जो अंदर की वैल्यू होती है ना, अगर माइनस में है तो भी प्लस हो जाता है। प्लस में हो जाएगी। इसको एग्जैक्ट नाम क्या बोलते हैं तो बता सकता है? छोड़ो अभी नहीं बता सकता। शॉर्ट्स। सेट्स नहीं बोलते हैं, मोड। मोड बोलते हैं, सेट। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने का। आई होप कि आपको याद होगा। नहीं याद है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है पॉइंट्स में, ढेर सारे पॉइंट्स है। मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, मतलब याद करने का तरीका। आप याद करना 2 आ जाओ, तो पहले लिख देता हूँ। ये x1 होता है, यहाँ पर होता है x2 सॉरी y2 माइनस 2 3 3 1 1 2, बस याद रखना आपको ये। y1 है प्लस x3 और यहाँ पर y1 माइनस और यहाँ पर इस तरह से मोड लगा हुआ है। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको पहले क्या है x1 यहाँ पर, इसके बाद मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, x प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय दीज टर्म्स प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय दीज टर्म। और इसको याद करने के लिए y जो वैल्यू है यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसको कंफ्यूजन ना हो इस तरह से आप इस कोड पे याद रख सकते हो 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2। आप इसको थोड़ा 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। और इसके साथ 23 31 12 हाँ 23 31 12 ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और ये जो है वैल्यू ये y की है, सारे इसमें y होते हैं। तो मैं इसको देखो सर्च किया था, अभी आपके सामने दिखा दूं मैं, क्योंकि वहाँ पर गलत हो गया था मुझसे लिखने में। तो मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इमेज हो सकता है वो ऑनलाइन अच्छे से। 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2। ब्लैक वाला अच्छा है सर। ये यस सर। हाँ एक मिनट, इसको यहाँ से व्यू करता हूँ। 2 3 3 1 1 2 इस तरह से। ये देखो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, इसके सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे। सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। नेटवर्क इशू होगा। सानिया खान आप एक बार ज्वाइन कर लो फिर से, लीव कर क्लास को, राइट? क्योंकि दिख रहा है, ये ओके, बहुत लोग को दिख रहा है। सो मे बी आपकी तरफ से कुछ इशू हो। कट करके फिर से ज्वाइन करते हैं। हाँ ज्वाइन करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो एंड इस पर क्वेश्चन में भी एक बार आए हैं, मैं प्रीवियस ईयर देखा हूँ जहाँ तक। बाकी इधर तो आपके 2021 तक में आया था शायद, 2021 या 20। ट्रायंगल चैप्टर का है सर ये। बिल्कुल 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 सही बात। देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स के बारे में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में, सेक्शन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, आपके रोम्बस में बताया, फिर स्क्वायर में है, फिर आपके रेक्टेंगल्स में है, पैरेललोग्राम्स में है, ठीक है? तो वहाँ पर इसका एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं प्रीवियस से दिखाऊंगा अभी आपको।
तो ये है आपके कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड सारे आइटम हो चुके हैं, इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर मैं तो बहुत जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ आपको। ये मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला जो आपको अच्छे से मालूम हो चुका है, ये डिस्टेंस फार्मूला करवा लिया। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है यही बता दिया आपको, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आता है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर उसके पॉइंट्स है। और यहाँ पर ये है कि आप किस तरह से, अगर हाँ एक चीज तो भूल गया मैं, एक चीज तो भूल गया, ये जो है मतलब सेंटर, एक मान लो एक ट्राइंगल है तो सेंटर वाइड निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर आप इससे लाओगे एक पॉइंट यहाँ पर सेंटर इससे, और यहाँ पर एक इससे, और इस साइड से लाओगे यहाँ पर इससे, दैट विल, ये इसको बोलते हैं सेंटर वाइड। केंद्र। तीनों साइड को प्लस करके 3 से। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में जी हाँ। केंद्रक। जी तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा x और यहाँ पर कौन सा y आएगा, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसका x, a का और b का और c का x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, और y को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। वहां पर y1 प्लस y2 y3, y1 यहाँ से, y2 यहाँ से, y3 यहाँ से लाकर 3 से डिवाइड करते हैं। दैट विल बिकम योर सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखना है आपको। एंड दिस वन इज क्लियर, यहाँ से आता है, ठीक है जी। एंड हाँ, मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था कि एक होता है आपके इंटरनल, तो इंटरनल बता दिया कि वहां पर प्लस होता है, बट एक्सटर्नल में भी क्या होता है ना, एक्सटर्नल जो होते हैं, देखो एक्सटर्नल का मतलब समझना आपको, माइनस होता। माइनस में होता है। मान लो कि ये ए और बी पॉइंट है, इसका तीसरा जो पॉइंट है ना, इसके बाहर की तरफ कट कर रहा है। यहाँ मान लो ये ए बी क्यू पॉइंट है, तो ये देखो पहले क्या था, यहाँ पर अंदर की तरफ था, इन दोनों के अंदर तरफ था। अब यहाँ पर क्या है ना, इससे बाहर जा रहा है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है। ठीक है, और इसको किस तरह से कट कर रहा है, ये मान लो ये M1 में और ये M2, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है ना, एक्सटर्नली जब होता है तो वहां पर हम लोग माइनस यूज करते हैं, जहाँ प्लस यूज करते थे वहां पर माइनस यूज। इससे देखो, इससे तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर मैंने M लिया है, N लिया है, वहां पर M1 और M2 लिया था। दैट इज ए ओनली डिनोशन, मतलब डिनोट कर रहा हूँ इसको कि इससे कर सकते हैं। दैट इज अ रेशियो ना, ये रेशियो है। सो रेशियो को हम रेशियो बस सेम। एक सिंबल दे रहे हैं कि M से कर सकते हैं, M1 से कर सकते हैं, M2 से कर सकते हैं। दैट इज अ सेम थिंग। एक्सटर्नल इंटरनल में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है। हाँ देखो, डिफरेंस एक्चुअली नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। अगर आप M समझने के लिए भाई। हाँ कर सकते हो, बट यहाँ पर इन्होंने, वहां पर मैंने जो आपको दिखाया अपने नोट्स में, M1 और M2 का लिया था ये रेशियो। यहाँ पर ये क्या है, M और N का रेशियो ले रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। और जहां पर आपका इंटरनल होता है वहां पर पॉजिटिव आता है, ऊपर भी और नीचे भी, और जहां पर एक्सटर्नल होता है वहां पर नेगेटिव होता है, तो माइनस। बस सिंपल सी बात आपको याद रखना है। एक्सटर्नली बोलेगा तो आपको वहां पर माइनस लेना है वैल्यू में, और इंटरनल होगा तो प्लस लेना है। दैट्स इट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हैं, तो आपको बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करनी है, और मैं प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ एंड कुछ सॉल्व भी करवा देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से आइडिया हो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसमें मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, राइट। एक पॉइंट, सॉरी 3 पॉइंट है, 1 2 3। कौन लेजेंड अभी आया है, 1 मिनट तो मैं देख लूं। मोहम्मद अदीब, मोहम्मद अदीब, टाइम से आओ यार, टाइम से आओ। मान ली PQR है ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ये किसके वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस हिंदी वाले में बता दो, इसको बोलते हैं शीर्षक, ये बोलते हैं ना शीर्षक। हाँ जी भाई। हाँ। तो बताया जा रहा है कि किसके शीर्षक है, मतलब शीर्षक कहने का मतलब ये होता है ना कि ये जो पार्ट्स है ना, दो ये जो होता है, रेखाखंड का त्रिभुज पॉइंट। के जो टॉप्स होते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसका होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का, आइसोसेलेस का होगा, इक्विलेटरल का होगा, या स्केलेन ट्राइंगल का होगा। तो आप जानते हो ट्राइंगल्स के सारे टाइप्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू भुजा। भुजा। इसको बोलते हैं हम लोग सम
त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, ये बोलते हैं ना। सर यही आंसर जी है। यस सर, दो इसको बोलते साइड हैं, बराबर। त्रिभुज समत्रिभुज। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं ना सम। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल को क्या बोलते हैं? और सम सम इसको क्या बोलते हैं? राइट राइट एंगल एंगल। सर समकोण। अच्छा हाँ, समकोण समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री। समकोण 90 बोलते हैं। डिग्री। और इसको बोलते हैं सम ट्रायंगल, मतलब सम त्रिभुज। इसको बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु समबाहु विषमबाहु। सर त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल माने तीनों भुजा अलग अलग ना। हाँ, स्केलेन का मतलब तीनों भुजा अलग, कैसे ऐसा होता है ना। इक्विवेलेंट हाँ, तीनों एक बराबर। अगर इक्विवेलेंट रहेगा मतलब इक्विवेलेंट मतलब क्या, तीनों साइड जो है, क्योंकि साइड जो है यस सर, यस सर। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे ये इक्विलेटरल है। अगर सिर्फ 2 बराबर होगा ये और ये तो बोलेंगे ये क्या है, आइसोसेलेस है। अगर ये तीनों आइसोसेलेस। अनइक्वल होगा, मतलब तीनों बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे ये स्केलेन, सेकलेंट। स्केलेन ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है कैसे आप करोगे? मैंने साइड बताया है, इसका आंसर बी होगा। ऑप्शन बी। डिस्टेंस निकाल आंसर बी होगा। अरे तुक्का मत मारो, भी नहीं, कुछ आप मुझे सही क्वेश्चन होगा, कैसे होगा सर शायद डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज हो निकलेगा ना आंसर सर। ये। यस यस यस। पी क्यू का पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर का, फिर सीधे पी आर का डिस्टेंस निकाल के ठीक है, उसके हिसाब से मैच करेंगे। फिर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कौन सा डिस्टेंस बराबर आ रहा है पूरा। यस एग्जैक्टली। अब देखो, आप चलो निकाल लोगे, ठीक है, मान लिया मैं बताया तो आपको ओवरव्यू, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। चलो मैंने क्या किया, आपने बोला उसके अकॉर्डिंग सबका डिस्टेंस निकाल लिया। मैंने यहाँ पर एक बनाया ट्रायंगल, अरे बन जा भाई, ठीक है। एक मैंने एक मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरह से, और मैंने नेमिंग कर लिया इसको पी क्यू आर, और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। मान लो इसका 2 आ गया, 5 आ गया एंड 10 आ गया, मान लो ये 3 आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो मैंने अज्यूम किया, देखो एक्चुअली मैंने निकाला नहीं, बस बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि आप बोलना कि ये आ गया, ऐसा नहीं है, मैं एज्यूम किया हूँ। अगर ये आता है तो आप क्या बोलोगे, इन तीनों साइड को देख के क्या बोलोगे, किस तरह का ट्रायंगल हो सकता है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन क्योंकि ट्रायंगल। तीनों जो यानी कि विषम बाहु होगी। समद्विबाहु। सर अगर ये तीनों अलग अलग है, माने अलग ही अलग है, तो डी ऑप्शन सही होगा। मैं बता रहा हूँ, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ। विष। राइट ऑप्शन आई नो कि आइसोसेलेस है, और कैसे है वही बताऊंगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसे आता, चलो मैं मान लिया कि ये है, क्या है ये, स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है ये साइड इसकी इक्वल नहीं है। दैट इज फाइन, यहाँ से मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और पूछता हूँ आपसे, अगर मैंने इसको सिंपल क्या किया, इसको भी कर दिया कितना, 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा फिर? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हो जाएगा। आइसोसेलेस। बट आइसोसेलेस हो जाएगा, एक ऑप्शन आपके पास ए भी है, इसको कैसे आप जी इग्नोर सर। कर सकते हो? फिर स्क्वायर करके देखेंगे कि हाइपोटेनस बराबर आ रहा है कि नहीं। यस एग्जैक्टली। बराबर है। पाइथागोरस आप लोगों यस को पढ़ा है सर। ना, थ्योरम। थ्योरम, थ्योरम। जी। उसको अप्लाई करेंगे, और वहां पर पाइथागोरस। मुझे शो करना होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, नहीं जीरो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो यस ये सर। होता है फार्मूला, वो इसको अगर फॉलो करेगा दैट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपलीफाई अगर ये करेगा। फॉलो नहीं करेगा दैट विल बी नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इट विल नॉट। बिकम ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस सर। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। यस सर। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल का जो वर्टिसेस दे रखे हैं, और इसको आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। तो ये तो और भी इजी है, आप मतलब मैं बता दे रहा हूँ इसको क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप। इसका डायगोनल ये होता है, और इसका जो वर्टिसेस है, मतलब कि पॉइंट्स जो है इस तरह से दे रखे हैं, सॉरी ए ओ बी से ना, ए ओ सर बी। ऑप्शन तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, बी और ओ की लेंथ निकालनी है। कैसे निकलेगा, कोई भी है वहां से बता सकते हैं। बी और ओ का सर डिस्टेंस निकाल लेंगे। सर ए ओ बी सी है, ए ओ सी बी। मैंने ए ओ बी सी सी लिखा है, थोड़ा सा यस सर। ये हो गया बी ओ मतलब। का डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद डायगोनल निकल जाएगा। सना, अब्बासी इमाम, और कौन है कल, एक और कौन थी, सानिया। तीनों बताओ बन जाए कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर मैं बताऊं? बन गया।
सी होगा आंसर इसका। ओके म्यूट करो। सानिया आपसे बन जाएगा ये? नो सर। नो नो क्यों नहीं बनेगा? कुछ दिक्कत आ रही है आपको? समझ नहीं आया क्या? बताओ। देखो सिंपल सा तो है, जैसे कि बताया ना आपको क्या करना है, इसका पहले डिस्टेंस निकाल लेना है, राइट? सारे का डिस्टेंस निकाल करके आपको इसका निकाल सकते हो डायगोनल। आप जानते हो ना रेक्टेंगल जो होता है ना, ये कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है, आप जानते हो। देखो आपने पढ़ा अभी डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास जो भी पॉइंट दे रहे थे ना, उससे आप निकाल सकते हो क्या क्या निकाल सकते हो? डायगोनल। डायगोनल निकाल सकते हो, या आप एक काम करो ना, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए बी की वैल्यू और ए ओ की वैल्यू। हाँ निकल डायरेक्ट डायगोनल से निकल जाएगा। हाँ उसके बाद आप क्या कर लो, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, उससे नहीं आ जाएगा ये? ये यस सर। आ जाएगा पाइथागोरस पे है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा पाइथागोरस सर में। सीधे बीओ से नहीं निकाल सकते हैं? सर यहाँ पे सी की जगह बी होगा ना, ए ओ बी सी होगा ना। ए ओ बी सी है, अच्छा सी की जगह क्या होगा? बी होगा, बी होगा। मतलब और फिर डायरेक्टली हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा लेंदी हो जाएगा बस। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही होगा ना, नेमिंग सही है ना? आप सही है। हाँ तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसको सोल्व करना आप लोग, जो भी मेथड आपको समझ में आया उससे सोल्व करने की कोशिश करना। नहीं बने तो आप मुझे पर्सनली कर लेना मैसेज, या मैं इसका सॉल्यूशन रहेगा मैं भेज दूंगा, या कोई ऐसा करना सॉल्व करके इसको आप ग्रुप पर डालना, या आप मुझे सेंड कर देना, ओके ठीक है? और हम आप कर लेना अगर बन जाए तो। बना हुआ है सर, फोटो खींच हाँ के दे तो दूंगा। भेज देना आप, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा ताकि जिनको नहीं बनना है उस तक हो जाए थोड़ा, ठीक है? और हमने बहुत ही मेहनत से इसको कलेक्ट किया है सारे क्वेश्चंस को, इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, सो दैट आप भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज। ये क्वेश्चन भी बन चुका था, आपसे बना लोगे। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना। हाँ ये वैल्यू है ना, बहुत ही मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना आना चाहिए। कहा गया है कि डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट का इतना है, कितना 6 है। तो मैंने बताया अगर एक ए है और एक बी है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस 6 दे रखा है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों का हो फॉर्मूला आप जाएगा यूज कर भाई। सकते हो। हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या करना, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, तो ये जो है तो रूट खत्म हो जाएगा। रूट हट जाएगा। उसके बाद सोल्व करना और आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ गए, क्या नाम था, क्या नाम था, नहीं चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा। एक सरल क्वेश्चन है। अब ये है हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? प्लीज म्यूट करो अगर नहीं कुछ पूछना, ठीक है? तो यहाँ पर आपके 70 नंबर क्वेश्चन जो है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू द y जो है 2 वैल्यू दे रखा है, तो किससे पैरेलल होगा बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस। एक्स है सर। क्या बात है। ठीक है 2022 का क्वेश्चन भी है, सेंट्रोइड निकालना है। देखो सेंट्रोइड का एकदम एग्जैक्टली एकदम क्वेश्चन जो आया है वो आया किस पर? आपके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पर आया है। फॉर्मूला sir. भेज दे। आप देखो एक चीज कर सकते हो आप यहाँ पर थोड़ा और भी ट्रिक के, देखो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सो यू हैव अ बेनिफिट क्या कि आप वहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन या एक चीज को सोल्व करके आप टिक कर सकते हो अपने आंसर को। कैसे मैं बताता हूँ। आपके पास जानते हो मैंने बताया था सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है एक्स और वाई निकालने के लिए, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, राइट? तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे x की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मतलब सेम नहीं है, डिफरेंस है। तो आप सिर्फ इसका निकाल के वैल्यू आप आंसर पर जा सकते यस हो। सर। आप समझ रहे हो जो मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ?
यस सर। यस sir. सर। Yes, sir. हाँ, तो आप क्या करो, सिर्फ 2 and 4, तो 2 से क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, 2 से माइनस 0 हो गया, एंड 4/3 4/3 आएगा सर। 4/3 कहाँ है, यहाँ पर सी पर, C बस में। आपको देखते ही मार देना है यहाँ पर आंसर। यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, जस्ट माइंड सोल्यूशन हो गया। कैसे, यहाँ पर आपने 2 लिया जो माइनस में है, और यहाँ पर क्या है 2 प्लस में है, तो ये प्लस 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 माइनस 0 हो गया, और यहाँ पर 4 यस है, सर। 3 से डिवाइड करना है, 4/3, दैट विल बी सी आंसर। तो इस तरह से आपको सोल्व करने का भी आदत बननी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस और पॉइंट दे रखे हैं, एंड नहीं निकालना है, मतलब 2 पॉइंट है उसके बाद निकालना है। दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। एंड यहाँ पर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में आपको सिंपली क्या करना है, दोनों का यस ऐड टू। करके, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, दैट विल बी टू से डिवाइड करना है। ए ऑप्शन है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको तुम सिर्फ एक ऑप्शन से क्या करो, बस एक बनाओ और टिक करो। अगर यहाँ पर सेम रहता 5 यहाँ भी रहता, उस कंडीशन में मुझे y को चेक करना पड़ता। अब देखो मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको, जिसका नाम है इक्वी लाइन। मान लो कोई एक लाइन हो, ये क्यू लाइन हो, और ये ए हो और ये बी हो, और कहा जाए कि ये दो लाइन जो है ना, ए और ए बी और पी बी, ये इक्वल है, ठीक है, ए बी और पी बी इक्वल है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखे होंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, x या y की वैल्यू एक मिसिंग होगा, वहां पर उससे निकालना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपने किया होगा। यस सर, किया है, चेक किया है। Yes, And- sir. Yeah. ठीक है क्वेश्चन। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन ये बनाओगे आप, बन जाएगा, उस तरीके से क्वेश्चन है आए भी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है जो, ये इसमें एक लीनियर इक्वेशन का भी यूज किया गया है, और आप कोऑर्डिनेट का भी यूज किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं कोई? The point 3a lies on the line represented by the 2x minus 3y is equal to 5 for the value of a. मैंने बताया आपको, जो पॉइंट होते हैं, जो भी गिवन पॉइंट्स होते हैं, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है x की वैल्यू। सर option। ऑप्शन ए होगा। यू नो ना, कि x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, y की वैल्यू यहाँ पर जी पुट करना, जी, that यस will सर। become, आपके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए मैं आ रहा सर है। सोच रहा था इसे डालूं या नहीं डालूं। कोई नहीं, आप जो इजी है उसको भी डाल सकते हो, क्योंकि मालूम होना भी चाहिए ना किस ये लेवल सर का लेकिन क्वेश्चन। लिंक है ना इस चैप्टर से। हाँ हाँ, आपने एक चीज 8% तो डालिए आपकी सर। अच्छी है कि आप बहुत, मतलब आप ये समझ पाते हो कौन सा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला है जी कि सर। तो आप कर लेना, राइट। सो यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है आपके पैरेललोग्राम्स की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, सो यू कैन सोल्व दिस आल्सो। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके द कॉन्सेप्ट में भी आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सो यू शुड ट्राई, एंड जितनी प्रैक्टिस करो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई थिंक आज के लिए एनफ है। कुछ क्वेश्चन होंगे आप करना खुद से, दैट विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। आप जितने सोल्व करोगे उतने आपके लिए सही होगा। प्रैक्टिस खुद से करो। बाकी आज की क्लास ओवर हो चुकी है। जस्ट राइट पी इन चैट बॉक्स एंड यू मे लीव नाउ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मैं 5 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, राइट। आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच once again to all of you to having participating till the end. सर कॉन्सेप्टम वाला बुक कहाँ से डाउनलोड करें? इमरान, आप इस क्लास के पास मुझे जस्ट एक बार हाई लिख देना, या कुछ भी करना मैसेज मुझे, मैं आपको पर्सनली सेंड करता हूँ इसको। आप बाद में आए, दैट्स व्हाई आपके पास नहीं है, मैं आपको पर्सनली सेंड करता हूँ उसकी पीडीएफ। हेलो सर। हाँ शब, बताओ। सर जो आपका जो गाइड है ना सर, जो आप पढ़ा रहे थ्योरी, आपका पीडीएफ कोऑर्डिनेट का, उसको भी सेंड कर दिया सर। उसमें है कुछ पढ़ने लायक? देखने लायक है ना सर? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कर दो। देखना नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। हमने क्वेश्चन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, उससे करो। अच्छा, ठीक ओके है। ओके।